Hello and welcome to RS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi. Today we are going to talk about the Finance Commission and the 16th Finance Commission. What is the Finance Commission? What does it do? Who establishes it? Everything will be answered in this particular section. So if I talk about the Finance Commission of India is basically a constitutional body. Remember that because it could be asked in your examination. Finance Commission is a constitutional body. That means it has been provided for in the Article 280 of the Indian Constitution. And who establishes it? It is the duty of the President to establish it. President has the duty of establishing it because it's a constitutional body. So by the end of 5 years of what? 5 years of what? When the previous Finance Commission has almost completed its tenure of 5 minutes. Now a new Finance Commission will be formulated and this Finance Commission will be now known as the 16th Finance Commission. Panagaria sir is going to be the chairperson of it, okay? And the Parliament is going to be deciding what should be the eligibility of members who will be the part of this particular commission. So it is the duty of the Parliament to decide the eligibility of members, eligibility criteria of members. Remember, of the Finance Commission. For this, a particular act was enacted. This was the Act of 1951. So, Act of 1951 provides for that who are going to be the members of the Finance Commission and who are not, alright, and they are appointed by the President because it's a constitutional body. That is why President is always going to be there. What does it do? This is the major question. So it decides that how the states and center shall deal with taxes. तो टैक्स के बेसिस पे किया जाता है कि किस तरह से सेंटर और स्टेट्स टैक्स का एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because India is a federal country. India is not a union, a completely centralized country. It has different states. The state has their own powers, own needs, own necessities, and the cities are going to be the powerhouse of Indian economy in the days to come. It is still and it is going to be in the future, and it needs development. तो state को city level पे भी development के लिए पैसा चाहिए, तो वो ये decide करती है, Finance Commission decide करती है, ठीक है. अब 73rd और 74th Constitutional Amendment जिसने of course पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज का कंसेप्ट हमारे इंडिया में लाया है, इससे फेडरल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है. इसी के साथ साथ अमेंडमेंट भी हुआ था आर्टिकल 280 में, 280 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी एंड सब क्लॉज सी. इसमें मैंडेट किया गया है फाइनेंस कमीशन को कि सारे मेजर्स आप बताइए किस तरह से कंसोलिडेटेड स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड यूज होगा फॉर सपोर्टिंग पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है. इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो सिटीज कंट्रीब्यूट करती हैं 66% ऑफ इंडियाज जीडीपी. ये क्या है? सकल घरेलू उत्पाद. जीडीपी क्या होता है? यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. What is gross domestic product, beta? For example, I take the example of our country India. This is our country India. India has a geographical boundary, right? So India has a geographical boundary. So within this particular boundary, the value of volume of goods that is being produced within India for a specified period of time, for example 1 year, इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. अब यहाँ पे ना MNCs भी इंक्लूडेड हैं. अगर कोई MNC यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल के बैठी है एंड यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे जीडीपी में, ठीक है. इसको याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है. अब यहाँ पे जीडीपी में 66% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है. टोटल गवर्नमेंट की रेवेन्यू में सिटीज़ 90% तक का रेवेन्यू जनरेट करी. ये रेवेन्यू कैसे आ रही है भाई? रोड टैक्स से आ रही है, ठीक है. हाउस टैक्स से आ रही है, सीवर टैक्स से आ रही है, सीवर टैक्स या सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स से आ रहा है,
ये ज़्यादातर कहाँ पे डेवलप्ड है, ये डेवलप्ड है सिटीज़ में, रूरल एरियाज़ में इतना डेवलप्ड टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। इसी वजह से आपने बहुत बार सुना होगा कि रेवेन्यू वहाँ से कैसे जनरेट करें। तो टैक्सेशन सिस्टम सिटीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलप है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है कि $840 बिलियन रिक्वायर्ड है ताकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन लेवल पे हम दे सकें। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, स्कूल्स, ऑफिसेज, ये सब इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब डिस्पाइट बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं मल्टीपल कमीशंस के द्वारा, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। डिवोल्यूशन का क्या मतलब है, किस तरह से पैसे का वितरण स्टेट लेवल पे हो, सिटी लेवल पे हो, ताकि वो अपने खर्चे चला सके, अपने आप को डेवलप कर सके। इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर, एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में जो ट्रांसफर होता है, अर्बन लोकल बॉडीज जो इंडिया में है, ये बस 0.5% ऑफ द जीडीपी है। अब सोचो 66% ऑफ द जीडीपी दे रही है सिटीज, पर इसको वापस कितना मिल रहा है, 0.5%, जो कि बहुत लोअर है। साउथ अफ्रीका में भी इससे बेहतर है, 2.6% है, मेक्सिको में 1.6% है, फिलीपींस में 2.5% है, ब्राजील में 5.1% है, हमारे यहाँ बस 0.5% है। आईजीटीज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं 40% ऑफ द यूएलबीज टोटल रेवेन्यू, यानी इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स 40% ऑफ द टोटल रेवेन्यू दे रहा है। बट यहाँ पे इक्विटेबल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। स्टेबल सपोर्ट आईजीटीज से मिलते रहना चाहिए, नहीं तो फिर सिटीज डेवलप नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा पुअर फिस्कल हेल्थ की वजह से अर्बनाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, जो नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। जीएसटी का इंट्रोडक्शन जब से हुआ है तब से अर्बन लोकल बॉडीज़ की टैक्स रेवेन्यू जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स वो भी कम हो गई है। ये अप्रॉक्सीमेटली 23% थी 2012-13 में, अभी 9% हो गई है 2017-18 में। इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स भी लो हो गए हैं स्टेट्स से यूएलबीज, ये बहुत लो हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन रेकमेंड कर रही हैं कि 7% ऑफ द स्टेट्स ओन रेवेन्यू 2018 में देना चाहिए। यहाँ पे क्वांटम ऑफ आईजीटीज बढ़ाना पड़ेगा जीडीपी के लिए, जीडीपी का, नहीं तो फिर सिटीज़ पीछे रह जाएंगी। इसके अलावा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एम था कि फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करना है यूएलबीज को, पर प्रोग्रेस ठीक से नहीं हो पाया है। 13th फाइनेंस कमीशन जो पैरेलल एजेंसीज बना रही थी, पैरेलल एजेंसीज और बॉडीज़ के लिए बता रही थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट को फाइनेंशियली और ऑपरेशनली हेल्प करनी पड़ेगी। लोकल गवर्नमेंट को यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से सपोर्ट चाहिए, फाइनेंस के मामले में भी और टेक्निकल एड के मामले में भी। ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से टैक्सेशन मिल रहा है। इसके अलावा प्रोग्राम जैसे कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लैड्स और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, बेसिकली हर एमपी और हर एमएलए को एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंटल वर्क करा सकते हैं उसके लिए, तो इससे भी हेल्प होने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस डेटा भी है। सेंसस अभी तक हमारे पास 2011 का ही है, 2011 के सेंसस से चल रहे हैं। 2021 का सेंसस तो हो नहीं पाया था ड्यू टू कोविड-19, जिसकी वजह से अभी भी फिस्कल डिवोल्यूशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। यानी कि अभी भी हम जो फिस्कल डिवोल्यूशन कर रहे हैं दैट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पुराना सेंसस, नया सेंसस नहीं आया है। इंडिया के पास 4000 स्टैट्यूटरी टाउन्स है और सेंसस टाउन्स भी उतने ही हैं। इसके अलावा 23,000 विलेजेस हैं जो कि इफेक्टिवली अभी तक अर्बनाइज हो चुके हैं। अगर बात करें 16th फाइनेंस कमीशन की, इसको अपडेटेड डेटा चाहिए, नहीं तो कैसे बताएगी ठीक से पॉलिसी के लिए डेटा ही नहीं रहेगा तो पॉलिसी मेजर्स बताएगी क्या। अगर हम बात करें बहुत सारे माइग्रेशन भी हुए हैं टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ से, तो उसको भी लेना पड़ेगा। 15th फाइनेंस कमीशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे, स्पेसिफिकली ये चाहते थे कि प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शंस बढ़े अलॉन्ग विद स्टेट जीएसटी। यहाँ पे अकाउंट्स भी मेंटेन हो, पोल्यूशन मिटिगेशन के लिए पैसा खर्चा करना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इंडिया का अर्बनाइजेशन डायनेमिक्स चाहता है कि यहाँ पे टू मीट द नेसेसिटीज़ ऑफ फाइनेंसेस यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से हेल्प चाहिए। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट ने कहा है कि जो करंट इन्वेस्टमेंट रेट चल रहा है इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ पे ठीक नहीं है, ये आगे चल के वाटर सप्लाई इश्यूज भी कराएगा। फाइनेंस कमीशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ। प्रिंसिपल्स जो कि गाइड करते हैं ग्रांट्स एंड एड में, वो भी पर्टिकुलरली फॉलो करना होता है। यानी कि जो एड जाएगी डिफरेंट स्टेट्स को, वो किस हिसाब से जानी चाहिए, यहाँ मेजर्स क्या क्या होने चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स में बेटर पैसा पहुँचे और पंचायत को भी बेटर पैसा मिले, या फिर कोई भी प्रेसिडेंट अगर बोल रहा है मामला सुलटाने के लिए, तो उसमें भी फाइनेंस कमीशन को अपना एक्सपर्टीज़ देना पड़ता है। इसके अलावा कॉम्पोजिशन में क्या क्या है, मतलब कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। चेयरमैन और बाकी मेंबर्स जो होते हैं
ये तब तक के लिए पीरियड, तब तक के लिए होल्ड करते हैं ऑफिस जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहता है। जनरली 5 साल के लिए होता है। चेयरमैन और बाकी मेंबर्स को एलिजिबल किया जाता है रीअपॉइंटमेंट के लिए, अगर रीअपॉइंट होना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि आप क्वालिफिकेशंस बता सकते हैं। इसके लिए एक एक्ट भी पास हुआ था 1951 में, इसका नाम था फाइनेंस कमीशन एक्ट, ठीक है। चेयरपर्सन जो है इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। बाकी 4 अदर मेंबर्स कोई जज हो सकते हैं हाईकोर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सबको याद रखिएगा। ये जज हो सकते हैं हाईकोर्ट के, या फिर जो कि अपॉइंट किए जा सकते हैं हाईकोर्ट के जज जैसे ही, या पर्सन जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है फॉर द गवर्नमेंट। इसके अलावा पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशल नॉलेज इन इकोनॉमिक्स। 16th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो चेयरपर्सन अरविंद पनगारिया जी हैं। फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन है? एएन झा है, ये पहले एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी रह चुके हैं 15th फाइनेंस कमीशन की। एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी रह चुकी है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की। निरंजन राजा अध्यक्ष जी हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं अर्थ ग्लोबल निरंजन राध्यक्ष के। और फिर पार्ट टाइम मेंबर्स सौम्या कांति घोष हैं, एसबीआई ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रही हैं। 16th फाइनेंस कमीशन के पास बहुत ज़्यादा टास्क है कि भाई किस तरह से स्टेट और सेंटर को टैक्स रेवेन्यू बांटनी होगी, ये इनका काम होगा। मतलब ये सब इनके जो एप्लीकेशन होंगे रिकमेंडेशन के फिस्कल ईयर 27 से शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे रिकमेंडेशन अवेलेबल कर दी जाएगी अक्टूबर 2025 तक। यहाँ पे इट विल बी कवरिंग एन अवार्ड पीरियड ऑफ 5 years बिगिनिंग 1 April 2026। सो आई होप आपको बहुत कुछ पता चल गया हो फाइनेंस कमीशन के बारे में, एंड आई होप यू विल कंटिन्यूअसली engage with us in a similar manner. Thank you so much everyone. Stay updated.